welcome. हमें संपर्क This करें। is our 11th episode. So welcome to Mashwara 11th episode, 11.0 episode. This is a live consultation for person with intellectual and developmental disabilities during this coronavirus outbreak. मशवरा के इस 11वें अंक में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए एक लाइव परामर्श का एक माध्यम है। I welcome all our guests, all our audience, all our participants, and I'll start the program. We have today, I'll say that Mr. J.C. Gupta sir, he is chairing the session. Sir Gupta sir, you are chairing the session today. I will start with the very simple note. I welcome you all. WHO, the World Health Organization. The World Health Organizations recommend 150 minutes of moderate intensivity or 75 minutes of vigorous intensivity physical activities per week for everyone, or this is a combination of both. These recommendations can still be achieved even at home, and with the no special equipment is required, and within the limited space we can do all these exercise. The Mashwara 11.0 is bringing you some tips by our expert physiotherapist on how to stay active and reduce sitting behavior while at home. मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपले स्वागत आहे बड़कम। और WHO ने शारीरिक गतिविधि व्यायाम के लिए प्रति सप्ताह 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली और 75 मिनट यानी 1 घंटा 15 मिनट अनिवार्य तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि या व्यायाम या दोनों को मिलाकर ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए सिफारिश करता है। आप इन सिफारिशों को जो WHO ने बोला हुआ है, व्यायाम की सिफारिशों को आप घर में भी बैठकर कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष उपकरण की जरूरत नहीं है, कोई विशेष जगह की जरूरत नहीं है, सीमित स्थान में भी यह संभव है। इस मशवरा के 11वें एपिसोड में अंक में आपको घर पर रहते हुए सक्रिय रहने के लिए घर में एक सीमित स्थान में आप अपना जो गतिहीन व्यवहार है, जो आप घर में बैठे रहते हैं, इसको कैसे सही कर सकते हैं। हम आज भौतिक चिकित्सकों के माध्यम से इसके बारे में सुझाव लेंगे और हम हाजिर हैं आपके 11वें एपिसोड में। दिस मशवरा लाइव consultation is through Zoom today and Facebook Live for persons with intellectual and developmental disability, their families, caregivers, professionals during this coronavirus outbreak. यह मशवरा लाइव कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान Zoom पर और Facebook पर लाइव माध्यम से है। बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता वाले जो दिव्यांगजन हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके देखभालकर्ताओं के लिए, उनके प्रोफेशनल्स के लिए आज लाइव है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस मशवरा के अंक में। मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए, आप सभी से है। जब आप हमें कोई सुझाव देते हैं, जब आप हमें कोई कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही एक रोचक और बहुत ही प्रभावशाली होता है, जिससे कि हम आगे इसको बनाते हैं। मशवरा लाइव इज फॉर ऑल, प्लीज सर्कुलेट एंड ज्वाइन टुगेदर। वी आर डूइंग मशवरा सिंस 30th अप्रैल और ऑलमोस्ट आज मेरा 1 महीना हो चुका है और ये हमारा 11वां एपिसोड है। Once again, welcome and appreciate our special guest to join Mashwara Live. This episode is bringing a very important topic, physical activity, healthy at home. Today we have the experts, and experts are Dr. Suraj Kumar. We welcome Dr. Suraj Kumar. He is Associate Professor and Head of Department, Physiotherapy Department and Paramedical, Uttar Pradesh University of Medical Science, Safai. And another expert we have Dr. Sorab Ahmed Khan. He is an Associate Professor in Department of Rehabilitation Science, Jamia Hamdard, New Delhi. We welcome you both, sir. And we have the
other experts on demonstration, Dr. Gauri Shankar Puroti. He is a faculty in Uttar Pradesh University of Medical Science. He will support Dr. Suraj, and Dr. KB Ranjit Singh Chaudhary. He is also faculty in Uttar Pradesh University of Medical Science, Safai. We welcome you all, and we have today Mr. J.C. Gupta sir. He is presiding our sessions. To welcome you, Mr. J.C. Gupta sir. And we have sign language interpretation of whole sessions by Rakhi Ramola. We welcome you all. So I'll go to Mr. J.P. Gupta sir. You want to say something in few sentences for inaugural of this session? Dr. J.C. Gupta sir, Mr. J.C. Gupta ऐसा है कि एक्चुअली फिजिकल एक्सरसाइज तो हम करते रहते हैं दिन में, मगर उन फिजिकल एक्सरसाइज से इतना फायदा नहीं होता है। ये जो आज फिजिकल एक्सरसाइजेज हमारे एक्सपर्ट्स हमारे को बताएंगे, वो फिजिकल एक्सरसाइजेज ऐसी होगी जिससे हम स्पेसिफिक मसल्स को टोन कर सकते हैं, स्पेसिफिक चीजों को हम कायदे में ला सकते हैं। तो क्योंकि बच्चे घर में बैठे बैठे दो ही काम रह जाते हैं, या तो टीवी देखना है या इधर उधर उछल कूद करना है। तो स्पेसिफिक जो फिजियोथेरेपी उनकी रेगुलर स्कूल्स में चल रही थी, क्लासेस में चल रही थी या सेशंस में चल रही थी, वो बंद हो जाती है। तो ये सेशन के अंदर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे को ये बताएंगे कि किस प्रकार से हम जो है बच्चों की स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। So I'll invite Dr. Suraj Kumar. Yeah, sir. Thank you, sir. मैं पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मशवरा का यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया है, शारीरिक गतिविधियों के द्वारा घर पर स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। सो थैंक यू जेसी गुप्ता सर, एंड पुनः स्वागत करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सूरज कुमार का। ही इज एसोसिएट प्रोफेसर इन उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। And Dr. Suraj Kumar, please tell us in your opening thought how to stay active and reduce the sitting behavior while at home. हमारा जो sitting behavior है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं घर में रहते हुए, कैसे हम सक्रिय रह सकते हैं, हम कैसे अपनी गतिहीनता के व्यवहार को कम कर सकते हैं। डॉक्टर सूरज कुमार, आप अपना माइक ऑन कर लें। सूरज कुमार जी। सर माइक ऑन करें, सर माइक ऑन करें। जी जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटी का सवाल है, तो फिजिकल एक्टिविटी घर में रहकर कई तरह से कर सकते हैं। जैसे जब आदमी पोछा लगाता है, झाड़ू लगाता है, सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो सब फिजिकल एक्टिविटी करता रहता है। लेकिन इस मशवरा लाइव के द्वारा डॉक्टर आलोक कुमार के द्वारा जो हर एक मानव के लिए क्या फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, इसके लिए विचार किए, ये बहुत सराहनीय है। साथ में इसके द्वारा राष्ट्र का भी निर्माण हो रहा है। जो हम आज मशवरा के द्वारा फिजिकल एक्टिविटी बताने जा रहे हैं, इस सबको करना चाहिए। बच्चों, वयस्क, बुजुर्ग सभी के अवस्था में फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। और ये फिजिकल एक्सरसाइज बेसिकली दो तरह से होती है। एक वो एक्सरसाइज जो जनरल एक्सरसाइज होता है, सभी को कर सकते हैं, नॉर्मल मेल हो चाहे तो सब लोग करें। दूसरा वो एक्सरसाइज होता है जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज होता है। जैसे अगर किसी को कंधे में दर्द हो गया है, अब उस कंधे के दर्द में भी किसी को बर्साइटिस हो सकता है, कैप्सुलाइटिस हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, एडेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकता है, हो सकता है, फिजरी हो सकता है, कुछ भी। उन सबों में अलग अलग तरीके का स्पेसिफिक व्यायाम कराया जाता है। वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना, वो हम आज नहीं बताने जा रहे हैं। हम वो सिर्फ बताने जा रहे हैं जो कि सभी को करना चाहिए, बच्चे, बुजुर्ग, वयस्क सभी को करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज जो कि लो लेवल का एक्सरसाइज है, जो सभी को करना चाहिए शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले आप लोग पालती पोस्चर में बैठ जाइए। पालती पोस्चर में बैठ करके
एक्सरसाइज नंबर 1 कैसे करता है कि आप लोगों को हाथ को पालती पोस्टर में बैठने के बाद सांस खींचना, सांस खींचिए, सांस छोड़ना। नंबर 1 हर एक्सरसाइज 5-5 बार करनी है। सांस छोड़िए और इस एक्सरसाइज को करते समय आपका अंतःकरण मन से शुद्धिकरण करना होगा। ध्यान को एकाग्र करना है, सोचना है, इधर का बात इधर उधर का बात कुछ नहीं सोचना है। आप सब लोग एक्सरसाइज इसी से शुरू करेंगे। नंबर 2 आपको अपने हथेली को सीधा लेंगे और अंगुलियों को बंद करना है, घूमना है। एक्सरसाइज 10 बार। 10 बार करने के बाद आप लोग हिलाइए, इसमें सभी अंगुलियां घूमनी चाहिए, सभी अंगुलियां घूमनी है। तीसरा नंबर, हाथ को मैक्सिमम स्ट्रेच, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। ध्यान रहे सारी एक्सरसाइज आप लोगों को सीक्वेंस में करनी है, रिपीटिशन का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 10 बार कर सकते हैं, धीरे धीरे 2 दिन के बाद 15 बार, 4 दिन के बाद 20 बार, 1 दिन के बाद 25 बार। अब आपको इसके बाद आपको साइड में ले चलिए, फिर यहाँ भी एल्बो को मोड़ना है, अंगुलियों को कंधे पर रखना है और कंधों पर और कंधों पर। ध्यान रहे सभी एक्सरसाइज सीक्वेंस में होनी है। इसके बाद केवली आगे करके रोटेशन करनी है। रोटेशन करने के बाद ये सारी एक्सरसाइज 10 बार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। उस तरह से भी साइड में भी रख करके क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक कंधे का एक्सरसाइज हो गया। अब हम लोग गर्दन को एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को बाईं तरफ धीरे धीरे जितना संभव हो सके मोड़ना है। ध्यान रहे हर व्यायाम दाईं तरफ से शुरू करनी है, उसके बाद बाईं तरफ धीरे धीरे। जहां पर पेन होना शुरू हो वहां पर एक्सरसाइज रोक दें। और जो लोग खाना खाने के 1 घंटा बाद बैठे हैं वो एक्सरसाइज ना करें। खाना खाने के बीच में 1 घंटा का गैप होना चाहिए। देखिए जितना भी एक्सरसाइज है सभी में स्थान का, समय का, भोजन का, वातावरण का बहुत बड़ा महत्व है। अगला एक्सरसाइज अपने चीन को छाती से लगाना। पीछे धीरे धीरे आगे, फिर ऊपर, फिर पीछे। 5 बार आगे, 5 बार पीछे। सारे एक्सरसाइज करने का फायदा होता है बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, मसल बैलेंस, स्ट्रक्चरल बैलेंस। बॉडी में किसी का आई में मोटापा आ जाता है, किसी का पेट में मोटापा आ जाता है, किसी का हाथों में मोटापा, किसी का चेस्ट में मोटापा।
इन सबों को कम करने के लिए स्ट्रक्चरल बैलेंस। स्ट्रक्चरल बैलेंस का मतलब सारे जॉइंट पर एक्सरसाइज होती है। इसके बाद आपको रोटेशन करना है, रोटेशन, लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, 5 बार राइट साइड, 5 बार लेफ्ट साइड, 5 बार राइट साइड, 5 बार राइट साइड। और ये सारे एक्सरसाइज करने से देखिए मैं बता देता हूँ 5 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों में बोन का ग्रोथ, फैशन ग्रोथ चलता रहता है। तो कोई वेट का एक्सरसाइज, हैवी वेट का एक्सरसाइज नहीं करना है, लाइट एक्सरसाइज करना है। और ये लाइट एक्सरसाइज करना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये एक्सरसाइज हो गई, अब हम लोग पैर फैला लीजिए, पैर फैला करके हाथों को नीचे की ओर कर लीजिए, आराम मिल जाएगा। इसके बाद ऊपर शरीर के ऊपर का भाग का वजन हाथों पर आ जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाता है। बॉडी रिलैक्स करके आपको पंजों की अंगुलियां चलाना है, अंगुलियों के पैर की अंगुलियों को चलाइए, जल्दी जल्दी चलाइए। इससे ब्लड का फ्लो सही हो जाएगा आपके बॉडी में, बहुत जरूरी है। देखिए हार्ट का पंप होना चाहिए, पंप तो हार्ट कर देता है लेकिन नीचे से ऊपर आने के लिए तो फुट की मसल है, उसको चलाना बहुत जरूरी है। उसके बाद एंकल को अंगूठे को अपनी तरफ खींचिए, फिर अंगूठों को अपने से दूर करिए, अंगूठों को अपनी तरफ खींचिए, अंगूठों को दूर करिए, अंगूठों को अपनी तरफ, अंगूठों को दूर, अंगूठों को अपनी तरफ, अंगूठों को दूर, अंगूठों को अपनी तरफ। उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेशन। थोड़ा सा पैर की तरफ आप कैमरा करवा लीजिए। जी 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 ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंकल का एक्सरसाइज हो गया। अब हम लोग घुटने का एक्सरसाइज करेंगे। घुटने को आप लोग मोड़ लीजिए, मोड़ने के बाद इस हाथ से थाई पे लगा लीजिए, थाई पे लगा करके हाथों के सहारे धीरे धीरे आगे ले जाना है। ध्यान रहे कि आपका पैर ऊपर रहे, जमीन पे ध्यान रहे। उसके बाद फिर से मोड़ना है, आगे मोड़ना है 5 बारी दाएं पैर से, 5 बारी उसके बाद बाएं पैर से। इसमें क्वाड्रिसेप मसल का एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल, जो कि चलने में, बैठ करके उठने में बहुत सहयोग करता है क्वाड्रिसेप मसल। बच्चों में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चों के इस एक्सरसाइज में देखिए, बच्चों के एक्सरसाइज में 4 फायदा होता है बच्चों में। नंबर 1, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मसल का, बोन का, जॉइंट्स का, इन सबों को एक्सरसाइज करने से बच्चों में फिट ग्रोथ होता है, नॉर्मल ग्रोथ, मसल का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, बोन का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, मसल का, जॉइंट्स का। हर बच्चों को एक्सरसाइज करना है। इसके बाद आपको अपने हाथों को छूने का प्रयास करना है, पैर के अंगुलियों को। इसमें ध्यान रहे कि अगर नहीं छू पा रहे हैं, जैसे मैं बहुत हल्का सा छू पा रहा हूँ, तो जितना छू सकता है उतना तक ले जाइए, फिर ले जाना है। इसमें अगर संभव हो सके तो आपका नाक घुटनों से टच हो सकता है, हो जाए। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप करेंगे 50 तो हो जाएगा। इसके बाद अगला एक्सरसाइज आपका एक बाएं हाथ को ऊपर, दाएं हाथ के करने से ऊपर करके स्ट्रेच करना। ऐसे ही दूसरे तरफ
गुड मॉर्निंग सर। ध्यान है 5 बारी दाएं साइड, 5 बारी बाएं साइड। कुछ आवाज आ देखिए बच्चों में कार्डियोवैस्कुलर समथिंग भाई साहब मेरी इसमें जो लैटरल साइड के मसल है, ये कुछ बता रहे हैं, हमें आवाज ही नहीं आ रही। लैटरल साइड के मसल में कॉर्नर स्ट्रेचिंग। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर बैलेंस, शरीर का नर्वस आई नहीं कौन खा रहा भैया? नहीं अरे देख जो अपनी प्रोफाइल बोल रही हूँ को आप लोग सूरज सर आपकी आवाज फिर बंद हो गई। आप थोड़ा सा माइक ऑन कीजिए, म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस, ग्रेट सर। मैं देख रहा हूं कि जो हमारे अभी का जो ये पहला राउंड जो था एक्सरसाइज का, उसमें इट्स अ वेरी ग्रेट कि आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करके पूरे बॉडी का एक्सरसाइज तक ले गए और अभी भी एक्सरसाइज आपका चल ही रहा है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं ऑल आर डूइंग सेम एक्सरसाइज। आपका जो आज का जो ये सेशन है, इट्स नॉट सेशन की सिर्फ सुन रहे हैं, हम सब कर भी हैं साथ साथ। ये बहुत ही अच्छी बात है। सूरज सर आपका म्यूट है, आप अपना वीडियो माइक ऑन कीजिए। हाँ, आप लोग कई को ऊपर करिए, इसमें हिप जॉइंट का मूवमेंट होगा, हिप जॉइंट का। एक के बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में जो हल्के एक्सरसाइज है उसको लास्ट में तितली जैसा एक्सरसाइज करना है। यहाँ पकड़ करके इसमें ध्यान रहे इस एक्सरसाइज को करने में कि आपका घुटना अगर जमीन से सट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी सटता है आपको इसको करना है जितना हो सकता है उतना खींच के फुल बॉडी तो ये होती बट सबसे ज्यादा दिक्कत होता है इम्यूनिटी बॉडी का खराब होना। जिन आदमी का क्या किए जा रहा है? उसका कोविड बहुत ज्यादा होता है, तो आप इतने सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ता है और इम्यूनिटी बढ़ा करके आप कोविड को भी बात दे सकते हैं। तो आप लोग एक्सरसाइज करिए और एक्सरसाइज का मैं 4 फायदा बता देता हूँ आज। एक सबसे पहला है बॉडी का बैलेंस। बैलेंस मीन्स आपका हार्मोनल बैलेंस और आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म का बैलेंस। उसके बाद शरीर के अंदर बात पीत का इनका बैलेंस, आपके शरीर का जो भोजन खाते हैं उसका पाचन का बैलेंस, सब बैलेंस करने में काम आता है। नंबर 2, जो सेल्स आपके शरीर में डेथ हो जाता है, पुनर्जागरण, शरीर का जो सेल डेथ हो गया उसका भी जागरण करने में काम आता है। हम अब हैवी एक्सरसाइज करेंगे। अब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करेंगे। हैवी एक्सरसाइज में सबसे पहले आप लोग हाथ को फैला लीजिए और मैं ये बता रहा था कि हाथ को ऊपर ले चलिए। की जाता है हैवी एक्सरसाइज। अभी तक हम लोग लो लेवल का एक्सरसाइज कर रहे हैं जो बच्चों में करना है, और ये वाली एक्सरसाइज जो बड़े लोगों को करना है। सिर पर रख लीजिए,
सिर पर रखने के बाद उल्टा डायरेक्शन में ले चलना है ऊपर, उल्टा डायरेक्शन में ले चलिए ऊपर, और उल्टा डायरेक्शन में ले चल करके आपको दाईं तरफ नीचे की ओर झुकना है, बेंडिंग टुवर्ड्स द राइट साइड, स्ट्रेचिंग ऑफ द lateral abdominis muscle, stretching of the lateral abdominis muscle. मोटापा एक खतरनाक बीमारी है। मोटापा से आप लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। तो बचने के लिए मोटापा, आप लोग घर में 3 महीने से लॉकडाउन में थे, अभी भी रहना पड़ सकता है। घर में रहते रहते मोटापा आ गया होगा, तो इस एक्सरसाइज को करिए। नंबर 2, 2 नंबर की एक्सरसाइज में करिए, और दाएं हाथ से बाएं टोस को छूने का प्रयास, बाएं हाथ से दाएं टोस। ये सब एक्सरसाइज मोटापा कम करने के लिए है। नीचे जाते समय सांस लेना है, ऊपर आते समय सांस छोड़ना है। उसके बाद हाथ को ऊपर करिए, दोनों पैर क्लोज हो जाए, और नीचे जाकर के घुटने को टच करने का प्रयास करिए, पीठ को टच करने का प्रयास करिए, फिर ऊपर, फिर पीछे जितना जा सकते हैं जाइए, फिर न्यूट्रल, फिर आगे, फिर ऊपर। तो हम आपको बता रहे थे तीसरा फायदा, पुनर्जन्म। वो सेल्स डेथ हो जाते हैं, उस सेल का पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म। और नेक्स्ट फायदा है एक्सरसाइज करने का, पुनर्जागरण। जो सेल्स इनएक्टिवेट हो गए हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज के ये 4 फायदा है बेसिकली। और इसके अलावा आपके शरीर में, खास करके जो बच्चे ग्रुप के हैं 18 साल तक के बच्चों को, वो अपने आप को लोनली फील करते हैं। लोनली फील करने से उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने से लवन्या, सारे एक्सरसाइज सीक्वेंस में करने हैं। अब हम लोग ये चार एक्सरसाइज हो गए, इसी को हम लोग योगा में, आसना में बोलते हैं ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन और हस्तपदासन। ये 4 एक्सरसाइज हो गए। अब हम लोगों को बैठ करके एक्सरसाइज करने हैं। बैठ जाइए, बैठ करके आप लोग ऐसा हाथ बनाइए, हाथ बना करके इसको चक्कर ही बनाना है। चक्कर बनाने के लिए ध्यान रखना है कि आपका केहनी नहीं मुड़ना चाहिए। केहनी मुड़ना नहीं है। 10 बारी क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, मोटापा को हम लोग मापने के लिए 4 बीएमआई नापते हैं। हर आदमी का बीएमआई होना चाहिए। बीएमआई जिन आदमी का 18 से कम है उसको हम लोग बोलते हैं अंडरवेट। अंडरवेट कितने से बीएमआई वाले को 18 से कम। हेलो, उसको नॉट ये जस्ट
25 से 30 तक वाले को 25 से 30 वाले को ओवरवेट, 30 से 30 वाले ओवरवेट, और 30 से ऊपर वाले को ओबीस में 30 कैटेगरी। सूरज सर I'll take you in the next session. थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर ले. We'll take so very good. It is somehow we took हमने देखा कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से 90% व्यूअर्स they are modeling you, और उन्होंने मॉडलिंग करके एक्सरसाइज किया. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. At that we can say कि जो कोरोना काल में जो हम लोगों ने ऑनलाइन हुआ है, तो फिजियोथेरेपी भी ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जा सकता है. So there's a very good, you have started from the breathing exercise, a very small, कि हम बैठे बैठे भी breathing exercise कर सकते हैं. Then you gone through the neck exercise, shoulder exercise, full body exercise. हमने देखा कि हर तरह के एक्सरसाइज का हमारे लाइफ में हम कैसे कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में. और द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इससे सूरज सर ने बताया कि क्या हमारे फायदे हैं. We can be revive our life, we can regenerate our life, and we'll go into the now. Dr. Sohrab Ahmed Khan, he is associate professor, पुनर्वास विज्ञान विभाग जामिया हमदर्द नई दिल्ली. Sohrab sir, what are the way to keep physically active? हमारे पास क्या क्या और रास्ते हैं, क्या क्या साधन है कि हम शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं. जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम एक्सरसाइज से सक्रिय रह सकते हैं, क्या और भी साधन है जैसे बागवानी करके, योगा करके, या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके, डांस करके, क्या ये भी साधन हमारे फिजिकल एक्टिव होने का साधन बन सकता है क्या? सो डॉक्टर सोहराब अहमद खान सर, यू आर वेलकम, एंड यू प्लीज टेल अस कि व्हाट आर द वेज टू कीप दिस फिजिकल एक्सरसाइज. या सर माइक ऑन कर लीजिए सर, आपका माइक ऑन नहीं है. हाँ जी. Thank you, Alok ji. जी. Thank you for inviting me for such a nice discussion. First, I would like to request kindly switch off the mic of all of the participants so they can hear properly. Okay. Hello. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah. So Dr. Suraj has explained very well and demonstrated all the posture. First of all, I would like to share you muscle. Okay, as W recommended, 150 minutes of physical activity is must for everyone. Okay, so why this 150 minutes of physical activity is required? As we all know now, in Corona period, we all are confined to home. As well as if you see the current scenario, people are changing their life from mechanical world to electronic world. Most of us, especially middle class people, they are working in confined, constrained environment. They don't have enough space. They live in flats. Okay, so nowadays, even before Corona or even after Corona, they will not have enough space and enough time to exercise. Okay, so I am giving you some brief example with rational why physical activity is required. I will start with the muscle. As we all know, muscle is the largest tissue of our body. Okay, and muscle is the prime energy producer of our body. If you heard about the mitochondria is only available in muscle, and we all know the energy in our body which generate. Hello. As you all know, hello. Yes. Yeah. As we all know, that energy produced in our body is basically in the mitochondria, and mitochondria is available in muscle, and all other systems like heart, liver, lung, kidney, and even in brain, they all are working for muscle. They all are working day and night to supply nutrition, supply oxygen to the mitochondria. So mitochondria should be able to generate ATP. Okay, so muscle can generate ATP only when muscle is able to contract and relax. For muscle contraction and relaxation, physical activity is required. And we also know there is no diet and there is no medicine to build up the muscle. If you want to build up a muscle, you need to proper exercise.
and you have to find time for exercise. So in the current scenario, when we have social distancing norm, we have flat culture, we have confined offices. So I'm giving you some small tips how can we exercise to keep our body fit and healthy. Okay. So first of all, one broad concept known as calisthenics mean we should use our body weight. We should use our body weight because Dr. Suraj has explored the exercise mainly focusing on the joint. He has given most of the demonstration of the movement of joint. But loading the muscle is very important because if you want to generate muscle, if you want to strengthen muscle, we have to apply some amount of load on the muscle, and the loading should be gradual. We cannot apply high load and one time. We should start with the smaller load and slowly we have to increase because the muscle building is totally depend upon the loading. If you load the muscle in right manner, muscle will be regenerated. So some exercise like body weight means you are putting your own body weight like curl up, crunches, pilates. कुछ exercises हैं जो हम अपनी body के लिए कर सकते हैं. We can apply our own body load like mini squat for the lower limb, like crunches. Hello, I am visible. I am audible. Yeah. Okay. So I am saying that there are few exercises which doesn't, as you told me, there is no need of any equipment at home. So there are a lot of exercises which can be performed without use of any of the equipment, like crunches, like mini squat, like plank exercises, pull up, push up, etc. Okay. So these exercises will help us to increase our muscle mass. They can manage diabetes mellitus. They can decrease our cholesterol level. They can increase the cardiopulmonary function, as well as they can correct our posture and body strength. Apart from the body weight exercises, the second most important thing which we can do at home is cardio exercises. Cardio exercises mean we have to apply some amount of stimulus to our heart, so our heart should function normally. So what we can do, we can start running at the same place, running like jogging practice. We can go for the bungee jumping, jumping jack, skipping in place, rope skipping can be done. Okay. Same as we can have some small household work like grooming, cleaning the floor, as well as removing the spider. Next, after home cardio exercises, there is one very good form of exercise is Pilates. Pilates is form of exercise which improve our endurance, which improve our strength, as well as it improve concentration, cognition, etc. So Pilates is a very good form of exercise which can be performed without the use of any of the एवरीवन प्लीज स्विच, माइक प्लीज म्यूट हो गया माइक आपका। बंद कर लीजिए आप। मैं देख रहा हूँ कि 2-3 लोग हैं। डॉक्टर सरिता सिंह, आप अपना माइक बंद कीजिए। यस, सौरभ जी आपका माइक म्यूट हो गया है। या सौरभ जी आपका माइक म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। Yeah. So after body weight exercises, I have discussed about the cardio exercises. Cardio mean कि we are doing some cardiac training at the home by running at the same place, bungee jumping, as well as cycling on the bed. Okay. Next is Pilates. Pilates is very good form of exercise which doesn't require any type of equipment. Okay. In this exercise, we can use different kind of posture, and the posture can be seen through the different videos available on the social media as well as Google platform. Next is we can go for the yoga. Yoga is a very good exercise for physical as well as mental health. But one thing has to remember, the basic difference between yoga and physiotherapy. If I am regularly fit, I am not having any problem in any of my body tissues, especially muscular system. Okay. So if someone is having not any problem in joint and muscle, yoga is very good for them. But if someone is having any problem, yoga may be harmful if they are not performing yoga under the supervision of any of the expert guru. Okay. So don't perform yoga if you are having any problem, but physiotherapy can be performed if you are having some problem by assessment. So yoga
is very good, which can be performed at home. There are different online yoga classes are going on in the media. We can use. And last one is the fun with activity. We should take part in our homework like gardening, like car washing, like bike washing, as well as different activities at home, and we can enjoy it. We can play with our children, all these things. So these exercises. And next one is the static bicycle. There is availability of cycle at home, which can be used as a cardio exercises as well as for the standing purpose. Thank you. Oh, great. I have found that you have given the very broader meaning of the physiotherapy, कि हमें how we can go for the our metabolism development और सारे बहुत और भी exercise जैसे कि हम cardiovascular exercise कर सकते हैं. And that is good. Great information. And now I would like to request my audience. It is audience open for the audience कि आपके पास अगर कोई सवाल है फिजियोथेरेपी से आज के सेशन से संबंधित, आप हमारे पास जरूर मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप हमारे चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि किसी को अगर कोई सवाल हो तो आप बताइए, आप हमसे पूछ सकते हैं. प्लीज आप अपना नाम पहले बताइए और फिर हमें बताने की कोशिश कीजिए कि आपका क्या सवाल है. हेलो सर. जी, मेरा नाम सर परवीन कुमार है. सर मैं जानना चाहता हूं कि जो बच्चे वॉकिंग में जिनका शायद हम कह सकते हैं कैची की तरह अगर पैर है, लेफ्ट और पैर राइट की तरफ जाता है और राइट पैर लेफ्ट की तरफ जाता है, क्रॉस लेग की जो वॉकिंग करते हैं बच्चे. सीजरिंग गेट. हेलो. हाँ जी. तो सर इसके लिए हम बच्चे को किस प्रकार की जो थेरेपी है दे सकते हैं? देखिए ऐसा है कि जो है ये कॉमनली होता है सेरेब्रल पाल्सी में. अच्छा, और इसका रीजन जो होता है, देयर इज अ स्पास्टी इन द हिप एडक्टर. ओके, ये मसल है, हिप एडक्टर काफी टाइट हो जाती है. अब हमें देखना होगा कि ये मसल अभी कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चर में या सिर्फ टाइट है. अगर मसल कॉन्ट्रैक्चर में हो गई है, कॉन्ट्रैक्चर मीन कंप्लीट लॉस ऑफ मसल फंक्शन, देन सर्जरी इज रिक्वायर्ड. यू हैव टू कंसल्ट अ सर्जन. दे विल perform surgery, and after surgery the child will be trained for gait training with the use of some prosthetic and orthotic devices. Okay, but if the muscle is flexible, if the hip abductor is flexible, then we can provide normal gait with the use of some orthotic devices as well as proper stretching protocol. Also, in case of spastic children, stretching should not be very vigorous because these muscles are viscoelastic, so we have to start very low load. But you have to consider, you have to apply some low amount of stretch on the hip abductor muscle, but for the long time. Suppose if you apply some 1 kg load on the muscle, you have to maintain it for 30 seconds, 50 seconds, 70 seconds. Okay, then relax for the same time. Okay, so in case of muscle tightness, which is not contracture, so first you have to rule out whether it is contracture or tightness. If contracture, surgery is required. If tightness, is can be managed by the physiotherapy, but with progressive stretching protocol, which can be given on the patient depending upon the assessment. Great. So great. I'll go to Mr. Dr. Suraj and team. I have 1-2 questions, Suraj sir, from here. My question is, it will be very helpful to us if you provide some exercise picture of any PDF. Somebody has asked कि सूरज सर आपने जो एक्सरसाइज किया है क्या उसके कुछ पीडीएफ्स हैं, तो वो भी हमें भेजिए. हम लोग जरूर I'll request my audience, आप हमारे मनोविकास के पेज पे जा सकते हैं या फिर mashwara.live के पेज पे जा सकते हैं. वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, एंड डेफिनेटली I'll try to put it all these pictures and whatever the resource I will be getting from wherever, I'll definitely put the pictures and all these things. Suraj sir, I'll come to you and I'll have see how to improve bone and muscles to increasing the balance and flexibility. So if I'll say कि हमारे जो हड्डी है और मांसपेशी है उसमें ताकत लाना जरूरी है. सौरभ सर ने कहा कि उसका भी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है. एंड कौन कौन सा एक्सरसाइज हम ऐसा करें कि जिससे हमारी हड्डी भी मजबूत हो जाए और जिससे हमारी मांसपेशी भी मजबूत हो जाए. तो मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा
कि जो भी आप एक्सरसाइज बता रहे हैं, थोड़ा सा हम 2 ही 3 एक्सरसाइज बताएं, लेकिन थोड़ा सा गैप लेके बताएं, थोड़ा धीरे धीरे बताएं, सो दैट कि जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं वो उसको रिपीट भी कर रहे हैं, तो उनको रिपीट करने में आसान रहेगा, वो देख के कुछ कर भी सकते हैं। ओके, डॉक्टर सूरज सर, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए सूरज सर। हेलो, या ठीक है। देखिए, जो मजबूती के लिए एक्सरसाइज होती है वो वेट एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज को जब भी करते हैं तो हम लोग वेट बेयरिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, और दूसरे तरह का एक्सरसाइज होगा वो स्ट्रेचिंग होगा। इन दोनों एक्सरसाइज को करने से आपका मसल मजबूत होगा, बोन मजबूत होगा। अब मैं चाहता हूँ कि कम से कम 3-4 एक्सरसाइज बता दें, प्रॉपरली बता दें, लेकिन वीडियो नहीं चल रहा है। वीडियो चलाइए तो मैं दिखा देता हूँ करके। और खास करके इस कोरोना काल में, पैंडेमिक में, मशवरा के थ्रू आपका जो महामारी है, इसमें वैश्विक महामारी है, इसमें बहुत कामयाब है। इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो उसको काफी अच्छा इम्यूनाइजेशन का काम मिलेगा और हेल्दी होगा। साथ में आपकी जो ओबेसिटी में स्पेशली जो एब्डोमिनल मसल्स है उसकी जो फैट टिश्यू डिपॉजिट है वो कम हो सकते हैं। तो अगर वीडियो दिखाए तो मैं 4 एक्सरसाइज करके बता सकता हूँ। इन 4 एक्सरसाइज से वो काम होगा। वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो दिखाइए। आ रहा वीडियो आ रहा है। तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम करेंगे तो दिख नहीं रहा कि वीडियो चल रहा है आपका। नहीं चल रहा है आपका वीडियो, हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाकर Sir, we are not able to see. अरे सूरज सर, आपका वीडियो बंद हो गया लगता है। Sir, also not audible. और आप सुनाई भी नहीं पड़ रहे हैं। या सूरज सर, आपका ना वीडियो चल रहा है ना आप दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, सूरज सर, आपका ना वीडियो चल रहा है ना आपके दिखाई पड़ रहे हैं हमें। सूरज सर, लोग सर शायद उनका नेटवर्क चला गया है। हाँ, मुझे लग रहा है। हाँ, तो शायद। हेलो जी, हेलो जी हाँ, बोलिए सर। गुप्ता सर, मैं इस बीच में आई विल गो टू मिस्टर चंदन कुमार। चंदन जी, he has some tips on WHO's norms. You wanted to say something for us. I'll give you the brief so that as soon as we'll get the connectivity from Suraj ji, then we'll start. Okay. Okay. Good afternoon, everyone. I'm Chandan Goyal. और आप हिंदी में भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। हाँ जी सर, मैं हिंदी में कोशिश करूंगा, एंड देन इफ समबडी वांट्स इन इंग्लिश मैं इंग्लिश में भी उसको कन्वर्ट कर दूंगा। सो बेसिकली सूरज सर और डॉक्टर सौरभ उन्होंने बहुत अच्छा फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस के बारे में बहुत अच्छे से बताया। बट मैं एक पार्टिसिपेंट का मैं एक पढ़ रहा था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम क्या कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज दे सकते हैं, एंड फिजिकल एक्टिविटीज यंग चिल्ड्रन के बारे में थोड़ा सा मैं टच बेस करूंगा। सो फर्स्ट थिंग, जो हमारा जो गाइडलाइंस है जो यूके में हम फॉलो करते हैं फॉर यंगर चिल्ड्रन एंड यंगर पीपल जो 5 to 18 है, उनको हम लोग 60 मिनट्स पर डे एक्टिविटीज के बारे में बोलते हैं। और ये एक्टिविटीज बेसिकली प्ले वे में होना चाहिए। लाइक सर बोल रहे थे, आलोक सर बता रहे थे, कुछ जंपिंग, स्कीपिंग, और आपको घर के अंदर स्केटिंग भी कर सकते हैं बच्चे, और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कुछ खेल सकते हैं, कैचिंग ऑफ बॉल्स। डांसिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बहुत अच्छा डांसिंग अपने बच्चों के साथ, मदर अपने बच्चों के साथ डांसिंग कर सकते हैं और वो प्ले वे भी होगा। और योगा, ओब्वियसली योगा कर सकते हैं।
अगर बाइक, अगर ऑब्वियसली अभी बाहर जा नहीं सकते हैं, बट जिसके घर में गार्डन है वो बाइक यूज कर सकते हैं। और ये सब एक्टिविटीज बहुत जरूरी होता है बच्चों में करने के लिए। दैट इज ये एक्टिविटीज बच्चों का एक तो सोशल स्किल इंप्रूव करेगा, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर सकता है, उनका कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इंप्रूव करेगा, और उनका मसल्स और बोन्स में स्ट्रेंथनिंग होगा, और ओवरऑल हेल्थ, हार्ट का फिटनेस इंप्रूव करता है, वेट गेन में रिड्यूस करता है, एंड स्लीप बहुत अच्छा देगा बच्चों को, स्लीप इंड्यूस करता है ये। जो अगर बच्चे एरोबिक एक्सरसाइज लाइक डांसिंग एंड स्कीपिंग और ये स्केटिंग ये सब एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें स्लीप बहुत अच्छा होगा, और स्लीप से ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा बच्चों का, और एंड ऑफ द डे इट मेक्स यू फील गुड। एंड मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में से बोलूंगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम क्या कर सकते हैं। सो पहले तो मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये बोलूंगा, जो बच्चा फंक्शनली कर सकता है आप उसको डेली एक्टिविटीज में एंगेज करें। जो उसका मसल स्ट्रेंथ है, जो भी रेसिडुअल मसल स्ट्रेंथ है, लाइक अगर बच्चा खुद से ड्रेस पहन सकता है तो आप उसको सिर्फ ड्रेस पहनने के लिए प्रमोट करें। आप उसके टेबल साइड में जो एक्टिविटी हो सकता है, लाइक आप कुछ कैचिंग ऑफ बॉल्स, आप चेयर पे बैठा हुआ है, पेरेंट्स के सामने बैठे हुए हैं और उसके साथ थ्रो ऑफ बॉल वो कर सकते हैं। आप छोटी मोटी एक्टिविटीज जो कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा में थकान ना हो, उसकी मसल्स ज्यादा थके ना। ज्यादा थकेंगे तो उसकी मसल्स की वीकनेस और बढ़ सकती है। सो आपको बस वो 15 मिनट्स का 10 मिनट्स 15 मिनट्स की एक्टिविटीज देनी है। उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं, एक्टिविटीज को रेस्ट दे सकते हैं, फिर आफ्टर 2 आवर्स कुछ और हल्का एक्टिविटीज दे सकते हैं। सो बेसिकली मैं ये एडवाइस करूंगा, ऑलरेडी आपको बाकी हमारे एक्सपर्ट पैनल ने के बारे में बताया है, सो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा। बट मैं ये एडवाइस करूंगा कि एज फार मैं गाइडलाइंस जो हम लोग यूके प्रोटोकॉल्स का, यूके चीफ मेडिकल ऑफिसर जो फिजिकल एक्टिविटीज का गाइडलाइंस है, डिफरेंट एज का डिफरेंट गाइडलाइंस है। 5 to 18 का, 18 to 65, 65 एंड अबव, उनके लिए मैंने स्लाइड्स सर को भेजा है, आलोक सर को ईमेल किया है। आलोक सर अगर आप भेज दें उससे क्या इंप्रूव हो सकता है, क्या एक्टिविटी कर सकते हैं वो, एंड ऑब्वियसली बाकी जो एक्सपर्ट पैनल ने एक्टिविटीज बताया है, दे कैन डू दैट एज वेल, एंड दे कैन फॉलो सम ऑफ द गाइडेंस। वो पिक्टोरियल फॉर्म में है, वो अनफॉर्चुनेटली हिंदी में नहीं है वो, बट इंग्लिश में, बट वो बहुत सिंपल है, वो पिक्टोरियल भी है, क्या कर सकते हैं आप उसको देखकर आप उसको प्लीज सर आलोक सर शेयर कर दीजिएगा। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू चंदन जी। मैं आपको बताता हूं कि WHO ने बताया है कि उम्र के हिसाब से कितनी मात्रा में हमें शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। 1 वर्ष से अगर कम आयु का शिशु है तो कम से कम उसको 30 मिनट की एक्सरसाइज, 5 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है तो उसको 180 मिनट की एक्सरसाइज पर वीक में करना चाहिए। 5 से 17 वर्ष का अगर आयु का कोई किशोर है तो एक दिन में कम से कम 60 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। कोई 18 वर्ष से अधिक उम्र का वयस्क है तो एक सप्ताह में उसको 150 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए। और पूरे सप्ताह में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कम से कम मध्यम और तीव्र गति की 75 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें। सो प्लीज रीड द WHO गाइडलाइन। आप WHO के वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं। आई थिंक सूरज सर ही हैज कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। सो सूरज सर आपने कनेक्शन हुआ नहीं हुआ? सो स्वराज सर, आई विल गो टू द with you. Before going with you, I'll take one more suggestion from Sangeeta madam. Sangeeta madam, she has started some activity. जो हमारे बीच अभी जितने भी मदर, फादर, पेरेंट्स, हमारे इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज जो जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मनोविकास एक एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहा है जो आप ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने आज देखा कि फिजियोथेरेपी भी ऑनलाइन हो सकती है। हम वी कैन सी द फिजियोथेरेपी, वी कैन ऑब्जर्व द फिजियोथेरेपी, वी कैन मॉडलिंग द फिजियोथेरेपी, जैसे डॉक्टर सूरज ने अभी बताया। सो नाउ डॉक्टर सूरज इज कनेक्टेड। आई थिंक डॉक्टर सूरज सर, आर यू कनेक्टेड? Yes. Yeah, so great. So if you are connected, then you please tell us wherever you have stopped, you continue from there. Please, sir. देखिए, डॉक्टर आलोक ने जो बताया कि एज के अनुसार एक्सरसाइज करना है,
वो सही है, WHO के अनुसार करना है और सब लोग करेंगे। उसमें थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया पढ़ने के बाद में, जैसे जो बच्चा 3 साल का है उसको कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, उसको तो बच्चा को कहेंगे एक्सरसाइज करने तो करेगा नहीं। तो ऐसे बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना होता है कि बच्चा को उल्टा दिखा दीजिए और उसके आगे कोई खिलौना रख दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई खिलौना रख दीजिए और कुछ आवाज निकलता हो उससे आप सामने रखिए, तो बच्चा अपने आप एक्टिविटी करेगा, हाथ ऊपर उठाएगा, नीचे उठाएगा, तो वो भी एक्सरसाइज है। मैंने फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े एक्सरसाइज, जो 3 साल का बच्चा हो उनमें भी एक्सरसाइज होना है, जो 8 साल का बच्चा हो उसमें एक्सरसाइज होना है, जो 65 साल का आदमी है उसमें एक्सरसाइज होना है, और जो 70 साल का आदमी है उसमें एक्सरसाइज होना है। इस महामारी, वैश्विक महामारी में मैं 4 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उसमें आपको रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी, एक्सरसाइज होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, जो आप लोग सीखिए और जरूर करिएगा। तो मैं कराने जा रहा हूँ, उसमें आपको उल्टा लेटना है, उल्टा लेट करके, उल्टा लेट जाएंगे, उल्टा लेट करके आप लोग अपने हाथ को किनारे पे रखिए, किनारे पे रख करके आप धीरे धीरे इस कंधे पैर को ऊंचा उठाना नाम लिए तो आप है नीचे जाए तो सांस छोड़ना है, ऊपर जाकर के सांस को रोक करके रखना है, तो सांस छोड़ते समय नीचे, सांस लेते समय ऊपर, सांस छोड़ते समय नीचे। शुरू में 10 एक्सरसाइज, बाद में धीरे धीरे एक्सरसाइज 30 तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा देर आराम करना है, आराम करना है पद्मासन। आराम करने के लिए दोनों हथेली पर अपना सिर का गेट रख दीजिए और इसके बाद इस हाथ के बल से आपको ऐसे ऊंचा करना है। This is also called भुजंगासन, भुजंगासन। देखिए इस एक्सरसाइज को करने में तो नाभि के ऊपर के मसल है, नाभि के ऊपर के मसल। देखिए पेट के मोटापा 2 तरह से होता है, एक को बोलते हैं पियर सेप ओबेसिटी और दूसरे को बोलते हैं एप्पल सेप ओबेसिटी। तो ऐसा एक्सरसाइज करने से एक नाभि के ऊपर का एप्पल टाइप का अगर ओबेसिटी है तो वो कम हो। और अगर आप ये सब एक्सरसाइज परफेक्टली रेगुलरली करते हैं ईमानदारी से, तो 2 दिन में आपका 1 kg वेट कटेगा, 1 kg। और पूरा 1 महीना में 15 kg वेट कर सकता है। ठीक है, फिर उल्टा लेट करके एक पैर ऊपर होल्ड करिए, फिर नीचे, दूसरा पैर ऊपर जाते समय सांस लेना है, नीचे आते समय सांस छोड़ना है, नीचे ऊपर नीचे, 5 बार राइट साइड से, 5 बार लेफ्ट साइड से। अगर जिनसे संभव हो सके तो दोनों पैर को उठा सकते हैं, दोनों पैर को। और एक एक्सरसाइज और है, दोनों पैर के नीचे। इसके बाद आप लोग सीधा हो जाओ, सीधा होकर
एक पैर ऊपर, दूसरा पैर ऊपर। अगर संभव हो सके तो दोनों पैर को ऊंचा करके 70 डिग्री पर, 70 डिग्री पर लाके रोक करके इसमें पूरा एब्डोमेन फंसा है, जिसका नाभि के नीचे जिसका ओबेसिटी है, बहुत परफेक्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज करने से जो पेशाब होने का जिसमें प्रॉब्लम है उसमें सुधार हो सकता है, प्रजनन क्षमता बढ़ सकती है। इसके बाद एक पैर को ऊपर करके इसका चक्री चलाना, 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होता है कि पेट में हर जगह, विभिन्न जगह पर, लैटरल साइड में, मिडिल साइड में, लोअर साइड में, अपर साइड में, सभी का एक्सरसाइज होता है, जिससे के कारण पेट का स्ट्रक्चरल बैलेंस is for both the circular motion of the lower limb, circular motion. So ये सारे एक्सरसाइज थे तो ओबेसिटी को कम करने के लिए और रेस्पिरेटरी कंट्रोल करने के लिए आप लोग घर में कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप कुछ पूछेंगे तो बताएंगे, नहीं तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारा चीज है। सूरज सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो हमारे एक व्यूअर्स ने पूछा है कि अगर कोई घर में छोटा बच्चा हो, सीपी हो, तो उसके लिए क्या क्या प्ले एक्सरसाइज या किस तरह का फिजिकल एक्सरसाइज करना है, और फिर अगर कोई डीएमडी वाला बच्चा हो तो उसके लिए क्या करना है, तो अगर इस तरह का क्या टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज छोटे बच्चों के लिए अगर हो तो वो बताइए सर। और मैं या प्लीज सर। क्या होता है, मेरे पालसी वाला बच्चा होता है, जैसे अभी डॉक्टर सुराग बता रहे थे, वो कंडीशन पे करता है वो, क्योंकि जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी स्पास्टिसिटी की ग्रेड क्या है, स्पास्टिसिटी कितना लेवल तक पहुंच गया है, और फ्रैक्चर क्या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है, जब तक हम नहीं देखेंगे, जब तक उसको हम, लेकिन हम आपको ऐसे बच्चों को जैसे जो घोड़ा है, घोड़ा पर अगर बैठाएंगे तो जरूर फायदा करेगा। बच्चों को गोद में ले तो एक पैर पीछे और एक पैर आगे करके गोद ले, ठीक है। ये जो बेसिक चीज है, ये करने से बहुत फायदा मिलेगा। मैंने कहने का मतलब ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, का तरीका, अगर इन सबों में हम इम्प्रूव करें उस बच्चे को तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ग्रेट जी। दूसरा क्या बता रहे थे आप? जी हाँ चंदन जी। यस हाँ सर, हाँ बोलिए हाँ चंदन जी बोलिए। सर मैं डीएमडी पेशेंट्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में मैं एक चीज ऐड करूंगा। वैसे बच्चे जो हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, स्क्लेरोसिस एंड डीएमडी पेशेंट्स को एक चीज ध्यान रखना है, सिर्फ उनको ज्यादा थकाना नहीं है। वैसे बच्चों को सीटेड एक्टिविटीज जो है प्ले वे में, वैसे बॉल एक्टिविटी बेसिकली हम लोग बॉल एक्टिविटीज ज्यादा देते हैं उनको है। जैसे आप लाइट बॉल्स जो होता है उसको, जो बीच बॉल बोलते हैं जिसको, आप उनको कैचिंग एंड थ्रोइंग, किकिंग ऑफ द बॉल, सो ये सब एक्टिविटीज करा सकते हैं। rather giving like lot of strengthening exercise कराएंगे तो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज, ज्यादा इन टर्म्स ऑफ जिसको थक जाएगा बच्चा, उसमें बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज नहीं देंगे, ठीक है। उनको बस ध्यान रखना है कि बस उनको इंगेज रखें, और कुछ ऐसी एरोबिक एक्टिविटीज जो माइल्ड एक्सरसाइज होता है वो ही सिर्फ देंगे बच्चों को। Great. Thank you. And I will go to the next segment of our program. हम लोग बताना चाहते हैं, आप जितने भी ऑडियंस हैं, आप सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा। आप जो हमारा सत्र जब अंतिम समय पे होगा, we are sharing the links of feedback and certificate
and in the message box at the end of the session. Please bear with us. हम सत्र के अंत में संदेश बॉक्स में फीडबैक फॉर्म और सर्टिफिकेट भरेंगे, आप उसमें फीडबैक साझा करेंगे, आपको वहीं से आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। मैं डॉक्टर स्वराब से जानना चाहूंगा सर कि डॉक्टर स्वराब सर, आप ये बताइए कि हमें कौन सा चीज ऐसा है कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए एक्सरसाइज में। व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज। डॉक्टर स्वराब सर, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए जी। जी डॉक्टर स्वराब सर। जी आपका माइक ऑन हो जाए। हाँ जी सर, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हेलो जी। जी प्रिकॉशन बहुत जरूरी हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि जो है हमारे जो बच्चे आजकल हैं, बच्चे हो या बड़े हो ना, एक तो एक्सरसाइज कभी भी खाली पेट नहीं करनी है ना। एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा सा कुछ स्नैक खा के करनी है और भरे पेट भी नहीं करनी है, तुरंत खाने के बाद नहीं करनी है, खाली पेट नहीं करनी है। और एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में वार्म अप होता है, वार्म अप फेज और कूल डाउन फेज, है ना। ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज बिना वार्म अप शुरू कर देंगे तो उसमें इंजरी का खतरा बढ़ जाता है ना। और इंजरी ऐसी होती है कि यू विल नॉट बी एबल टू नोटिस द इंजरी एंड विच में इन लॉन्ग रन इट में हार्म यू। ओके, तो जब भी हम कोई एक्सरसाइज शुरू करें तो पहले बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज खत्म करने के बाद थोड़ा कूल डाउन करें, ठीक है। और जो है हर एक्सरसाइज के बीच में बहुत देर एक्सरसाइज नहीं करना, बॉडी को थकाना नहीं है, आप बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करते रहें और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। जी उसके अलावा जो है जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर लॉन्ग कम से कम हाफ आवर एक्सरसाइज कर रहे हो अगर आप जो है, तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज को 2-3 सेशन में बांटे, है ना। 10-10 मिनट का 3 सेशन कर लें आप, है ना, एक साथ आधा घंटा। आजकल क्या हो रहा है, आजकल बच्चे जो है ना बड़े जोश में आके जिम ज्वाइन कर लेते हैं और बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में आजकल पता है सबसे खतरनाक चीज बॉडी बिल्डिंग है। प्रॉब्लम क्या हुई है आजकल कि पहले जमाने में क्या होता था कि 90% लोग खेती करते थे या मजदूरी करते थे, ठीक है। तो उस जमाने में हमारी बॉडी को चाहिए था मोर स्ट्रेंथ, है ना। हमारी बॉडी में 2 तरह के मसल फाइबर हैं। एक मसल फाइबर है जो बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं और एक मसल फाइबर जो बॉडी को एंड्योरेंस देते हैं। भगवान ने क्या किया, फीमेल को 80% फाइबर दिए एंड्योरेंस वाले। फीमेल जो है दे कैन वर्क फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड बट दे कैन नॉट वर्क हैवी वर्क, ओके। बट मेल्स को भगवान ने दिया बड़े फाइबर मसल के, जिससे वो भारी काम कर सकते हैं लेकिन हल्के काम देर तक नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर हैविंग लेस एंड्योरेंस फाइबर। लेकिन अभी क्या हुआ, सीन चेंज हो गया बिल्कुल। हम लोग आगे कंप्यूटर एरा में, तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हर आदमी हल्के काम बहुत देर तक कर रहा है। तो आज की हमारी जो जरूरत है कि वी शुड हैव मोर एंड मोर एंड्योरेंस। तो आजकल अगर देखें बहुत सारे बच्चे जिम में पसीना बहाते हैं, बॉडी को मसल बाइसेप्स, एब्डोमिनल, पेक्टोरल्स को हाइपरट्रॉफी मतलब बड़ा साइज में कर रहे होते हैं, जो कि उनके लिए बड़ा खतरनाक है। उनको चाहिए कि अगर उनका काम है कंप्यूटर बैठ काम करना, कोई सिटिंग जॉब है उनकी, तो दे शुड नॉट गो फॉर द वेट ट्रेनिंग फॉर बॉडी मसल बिल्डिंग, दे शुड गो फॉर द लाइट एक्सरसाइजेस, एरोबिक्स फॉर इंक्रीजिंग देयर स्टेमिना, ओके। सो ये बड़ा आजकल एक मिथ है हमारे नौजवानों में कि बॉडी बिल्डिंग जो कर रहे हैं और बाद में जाके जॉब कर रहे हैं कॉल सेंटर में या एमएनसी में बैठे हुए, पूरा दिन 10-12 घंटा बैठे हुए हैं, सुबह जाके शाम जाके 1 घंटा जिम में वेट ट्रेनिंग कर ली। तो इस तरह की वेट ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक है, ऐसी वेट ट्रेनिंग से बिल्कुल बचें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या, पॉस्चर। खासकर हम लोग जब बैठे होते हैं अपनी यहाँ पे चेयर पे, आजकल हम सब में सबका काम कुर्सी पे बैठ के 8 से 10 घंटा निकालना है। तो जब भी हम बैठे हो तो कोशिश करें कि हर आधे घंटे 1 घंटे पे एक बार कुर्सी से उठ जाएं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। पहले तो हम लोग अंगड़ाई लेते थे, अब हमारे पास टाइम ही नहीं अंगड़ाई लेने का, तो कम से कम हम हर 1-2 घंटे पे उठें, अपने आप को पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें, अंगड़ाई लें और 5-10 कदम वॉक करें, फिर बैठ जाएं। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो रिलीफ हो जाएगा एंड यू कैन परफॉर्म फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट एनी इंजरी। तो ये सबसे अच्छा अपनी बॉडी को रिप्लेनिश करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर बीच बीच में अगर आप 2 मिनट भी गैप का रेस्ट ले लें और बॉडी को स्ट्रेच करें, थोड़ा वॉक करें, फिर बैठ जाएं। तो खासकर जो सिटिंग जॉब वाले लोग हैं या इवन जो बच्चे घर बैठे होते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है कि हमें अपने शरीर को सुनना है कि हम काम कर रहे होते सोचते हैं अब ये पूरा करके छोड़ेंगे, कभी ऐसा मत करें। अगर आपकी बॉडी आपको
सिग्नल दे रही है तो इमीडिएटली स्टॉप द वर्क, टेक सम रेस्ट, देन स्टार्ट द वर्क। काम को पूरा करने के चक्कर में अपने शरीर को नष्ट ना करें। और इसके अलावा एक चीज है कि जो है अक्सर वेदर हमारा, क्योंकि इंडिया जो है वो डिफरेंट वेदर कंट्री है, कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, तो बहुत सारे जो लोग हैं एक्सरसाइज फ्रीकी हैं, एक्सरसाइज को एकदम पागलपन तरह करते हैं, तो वो हमेशा ध्यान रखें मौसम का। दे शुड प्लान देयर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ द कंट्री, है ना। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मौसम देख के एक्सरसाइज करें कि स्वेटिंग ज्यादा हो रही है या ठंडक ज्यादा हो रही है। तो कभी कभी क्या हुआ, ऐसा भी इंसिडेंस आया है कि बिकॉज ऑफ रॉन्ग एक्सरसाइज पीपल में डाई और दे में डेवलप देयर सम क्रॉनिक प्रॉब्लम इन किडनी और हार्ट। ओके, सो ये सबसे बड़ी छोटी चीज है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पानी खूब पिए एक्सरसाइज के बीच में, एक्सरसाइज के पहले और एक्सरसाइज के बाद। बॉडी को जितना हाइड्रेट करेंगे उतना अच्छा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि हमारी बॉडी में जो एक चीज होती है ना कि हम जो लोग खाते हैं, हम कहते हैं एक्सरसाइज इज गुड फॉर एवरीथिंग, तो खाना इज द फर्स्ट स्टेप। हर इंसान कहता है भाई इसने बहुत ज्यादा खा लिया और मैंने कुछ नहीं खाया, ये दुबला ही है, मैं मोटा हूं। इसका जो मिथ है, रीजन क्या है कि हमारे खाने का कई स्टेज होता है। एक होता है इंटेक कि हमने खाया अगले ने खाया बराबर। सेकेंड स्टेज इज डाइजेशन कि हमने खाया एक, उसने खाया एक, बट हमने आधा डाइजेस्ट किया, उसने एक डाइजेस्ट किया, तो इट मीन ही हैज टेकन डबल ऑफ मी। डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन कि किसने कितना एब्जॉर्ब किया। फोर्थ होता है मेटाबॉलिज्म कि जितना एब्जॉर्ब किया उसमें से हमने कितना यूटिलाइज किया। एंड फिफ्थ इज एक्सक्रीशन, है ना। तो जो हम बॉडी में चीजें लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो पांचों स्टेज है, फ्रॉम इंजेशन टू डाइजेशन टू एब्जॉर्प्शन टू मेटाबॉलिज्म टू एक्सक्रीशन, जिसका अच्छा होगा वो हेल्दी रहेगा। तो इसलिए जो है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और स्ट्रेस नहीं लेते हैं, स्ट्रेस सबसे खतरनाक है आपकी बॉडी को डाइजेशन खराब करने में, एब्जॉर्प्शन खराब करने में। दो चीजें याद रखें, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस ना लें। I can guarantee you will not have any of the musculoskeletal or any of the chronic disease. Thank you. Oh, great. Hello. Very good information. Okay, so so we have the lot of insights, lot of things. People has appreciated things. अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो I can take one Yeah, question. sure. Yeah, please. किसी के पास कोई भी हमारे viewers जिसके पास कोई सवाल हो तो वो बताइए. Is there any diet plan for the CP child? CP बच्चों के लिए जो cerebral palsy है उनके लिए कोई डाइट प्लान है? Yeah. CP autism. CP और autism के लिए. Madam, we'll take that separate session on this for the diet plan. In the last session में जो हम लोगों का पिछला जो मशवरा बीता था उसमें यह है कि CP और या कोई भी व्यक्ति विशेष है उसके डाइट प्लान पे जो हम लोग चर्चा करते हैं। आजकल ये मार्केट खुला हुआ है डाइट प्लान का, लेकिन हमें वेट करना चाहिए, हमें प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए कि कौन सा डाइट हमें देना है। यस मैम, आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड टेल आस्क क्वेश्चन। नमस्ते सर। हाँ जी। मेरा बेटा 11 साल का है, उसको ना स्नीजिंग हो जाती है बार बार और जल्दी इन्फेक्शन कैच करता है, उसके लिए जी बोलिए आपका आवाज क्या हो जाता है, क्या कैच कर जाता है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम आई थिंक। मेरे बेटा 11 साल का है जी। स्नीजिंग हो जाता है बार बार, छींक आती है उसको और क्या कहते हैं इन्फेक्शन जल्दी कैच कर लेता है। तो क्या उनको एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इसके बारे में क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? डॉक्टर डाइट वगैरह भी बता सकते हैं डॉक्टर स्वराज, यू कैन आंसर या प्लीज। देखिए एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट है, बट इनके बेटे को आई थिंक ही इज हैविंग सम एलर्जी। ओके, सबसे जरूरी इसके लिए कि पहले ये कौन सा एलर्जेन जो बार बार इसको स्नीजिंग करके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो पहले उसका पता करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट में हो सकता है एक चीज हमको बहुत अच्छी लगती हो, अगले के लिए वो एलर्जेंस है ना, क्योंकि हर इंसान अगले इंसान से अलग है। तो उसके लिए एक अच्छे इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करके पहले ये रूल आउट करें कि व्हाट इज द ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर कॉजिंग हिम स्नीजिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हमारी कार्डियोरेस्पिरेटरी लंग्स और हार्ट अच्छी तरह काम करें तो वो हमारी हम सबके अंदर इन्फेक्शन है। एवरीवन इन इंडिया इज हैविंग लॉट ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ओके, बट हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि हम उनसे काउंटरैक्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छी एक चीज के बैलेंस डाइट मतलब होता है कि आपके पास जो भी है, जरूर नहीं कि आप बहुत हाई फाई चीजें खाएं, जो भी है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर,
अपने बैलेंस अमाउंट मिलने। हमने कहा ना इंजेक्शन बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वरना देखिए आजकल बड़े बड़े लोग जो है वो हर चीज उनके पास खाने को अवेलेबल है, फिर भी दवा खा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, रीजन है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, अगर एब्जॉर्ब हो भी गया तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही है। तो अगर हम उसको प्रॉपर एक्सरसाइज कराएं, है ना, एक्सरसाइज क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो पेट के अंदर टिश्यूज होते हैं ना, वो सीलिया होते हैं, रेशे होते हैं, वो मूव करके और फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो खासकर सीपी बच्चों में हमेशा एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेवलपमेंट डिसऑर्डर में उनके मसल के साथ साथ और सारे आर्गन भी अफेक्टेड होते हैं। तो उसको अगर एक्सरसाइज कराएं, लेकिन साथ साथ में मेडिसिनल हेल्प जरूरी है, एलर्जी पता करना जरूरी है, साथ साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बैलून फ्लो से जो है सीटी ब्लो कराएं, कैंडल ब्लो कराएं, है ना, डीप ब्रीदिंग कराएं, है ना, योगा कराएं। उससे क्या होगा, उसके लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो लंग का इन्फेक्शन को काउंटरएक्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसके जो एपिसोड है कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एंटीजन को ट्रिगर करना, एंटीजन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्यों उसको इतनी एलर्जी हो रही है। एक्सरसाइज करें, लंग एक्सरसाइज करें, जैसे गुब्बारा, सबसे अच्छा सिंपल एक्सरसाइज है। बच्चा गुब्बारा फुलाए, दिन में 10 गुब्बारे दे दिए, 10 फुलाना है ना। So lung strengthening is very important to prevent infection. Thank you. Great. I'll go to the Dr. Suraj and team. Before I'm going, we have one good question, Dr. Suraj. आपने बड़े एक्सरसाइज दिखाए. So are there any exercise in the morning time, आफ्टरनून टाइम और इवनिंग टाइम में क्या अलग अलग तरीके के कोई एक्सरसाइज है? क्या हमें, जैसे एक बात और आई थी बीच में कि एम्प्टी स्टमक में क्या एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं, खाली पेट में एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो डॉक्टर सूरज, हमें समय के हिसाब से कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए खाली पेट में? अगर मॉर्निंग में देखा गया कि द पीपल गो फॉर द वॉक इन द पार्क, इवन मैं भी खुद पार्क में जाता हूँ और सुबह सुबह ही जो थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज करनी होती है वो मैं वहां कर लेता हूँ, लेकिन वहां तभी तो खाली स्टमक ही होता है। तो क्या ये ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे जो आम धारणाएं हैं, उसके बारे में डॉक्टर सूरज क्या बात कहते हैं आप? जी, आप माइक ऑन कर लीजिए सर, माइक। हाँ, बहुत ब्रीफ में समझाना चाहूंगा। जी। एक्चुअली आपको कोई भी एक्सरसाइज करना है तो 4 बात जरूरी है। नंबर 1, समय, स्थान, वातावरण, भोजन। ये 4 बात का आपको पूरी प्लानिंग करना होगा। वातावरण कैसा होना चाहिए? वातावरण पूरा शांत होना चाहिए, कहीं पे बहुत नॉइज नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं वातावरण होना चाहिए। एक बात हो गया वातावरण का। दूसरा बात होना चाहिए भोजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जब भी कोई आदमी भोजन करे तो 4 भाग का 2 भाग सॉलिड से पेट भरना चाहिए और 1 भाग लिक्विड से भरना चाहिए और 1 भाग हवा के लिए छोड़ देना चाहिए, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो भर पेट तो खाना कभी आदमी किसी को खाना ही नहीं चाहिए। सॉलिड भोजन होना चाहिए, 2 भाग, 1 भाग होना चाहिए लिक्विड और 1 भाग होना चाहिए गैस और हवा। ठीक है। और एक्सरसाइज करने में कम से कम तो 1 घंटा का गैप होना चाहिए, या तो पहले या तो बाद में। भोजन तभी, एक्सरसाइज तभी हो जब 1 घंटा पहले कुछ खाए हो या 1 घंटा बाद कुछ खाने की जरूरत हो। लेकिन सुबह लोग जो उठते हैं तो वो बिना खाए ही चले जाते हैं पार्क में और वहां पर एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वहां तो 1 घंटे की बात नहीं। स्थान और समय तो आ जाएगा। स्थान और समय में क्या होता है कि समय के लिए ये कहता है कि एक्सरसाइज होना चाहिए, ये वार्म एंड कूल समय में होना चाहिए। अब दोपहर में जैसे आप 7 बजे के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो धूप हो जाती है। धूप में करने से जो भी आप काम करें, मान लीजिए कि आप एक सिंपल जॉगिंग कर रहे हैं, तो इस जॉगिंग को करने में आपके बॉडी का अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर राइज, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी में, 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी में तो जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होने होते हैं डबल हो जाता है।
जैसे अगर सांस लेने का आपका कैपेसिटी होता है, मान लीजिए एक पल्स चल रहा है 72 टाइम पर मिनट, तो आपका सीधे डबल हो जाएगा अगर 10 डिग्री टेम्परेचर किसी आदमी के शरीर से बढ़ता है। तो जब भी आपको एक्सरसाइज करता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और यही टेम्परेचर आपको अगर धूप से भी मिले तो दो तरह से टेम्परेचर बॉडी को बढ़ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर से भी टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सरसाइज करने से टेम्परेचर बढ़ता है, और वातावरण से भी मिल जाएगा। दो तरह से अगर मिल जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर से बचिए। अगर 10 डिग्री किसी का आदमी हो जाए तो हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चीजें डबल हो जाता है। बच्चों में, आदमी में मरने का चांस हो सकता है, कीचड़ हो सकता है, मॉर्टिलिटी हो सकता है। ओके ग्रेट। बहुत ही आपने अच्छा बताया कि हमारा जो बॉडी है उसके टेम्परेचर के हिसाब से। मैंने बहुत सारे व्यूवर्स के बहुत सारे प्रश्न देख रहा हूं कि मोस्टली व्यूवर्स आज दिख रहा है मुझे कि दे आर कमिंग हियर फॉर द सर्टिफिकेट। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, मैं पहले भी दिन बताया था, आज भी बताना चाहता हूं कि मशवरा जो है ये कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन मीन्स कि हम किसी भी प्रश्न विशेष से, किसी भी विषय विशेष से हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों का सवाल था जिसको कि हमने सॉल्व किया। सो थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया है। मैं लास्ट सेशन के अंत में जी मैं परवेज बोल रहा हूँ, परवेज अहमद सिद्दीकी। मैं कह रहा था, मैं भी एक स्कूल से जुड़ा हूँ, स्पेशल स्कूल से। जी। कई बार होता है ना कि कई पेरेंट्स एक्सरसाइज करते करते बच्चे की ओवर स्ट्रेचिंग कर देते हैं। तो इस बारे में कुछ मतलब एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो राय मैं जरूर यस मैं तो ऐसे ही राय की। यस सूरज सर प्लीज। हाँ, आपका माइक शायद ऑन नहीं है सूरज सर। बच्चे का जब जन्म होता है तो जैसे आप लोग समझते हैं कि उसमें इंटेलिजेंस पावर, जो सोचने पढ़ने लिखने की शक्ति होती है, वो हर आदमी में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये तो सब जानते ही हैं। इसी तरह से आदमी का जब पैदा होता है बच्चा, तो जितने भी मसल्स होते हैं बॉडी का, जहां भी हाथ में पैर में जो मसल्स हैं, सभी मसल्स की भी स्ट्रक्चर, मसल का बनावट, मसल का सोच, मसल का अकड़ापन, ये सब अंतर होता है। जैसे आप देखेंगे, अगर 5 आदमी को देखेंगे, आप उसको कहिएगा हाथ मोड़ने के लिए तो इतना पड़ेगा, किसी आदमी को मोड़ने कहिएगा तो पूरा ऐसे सट जाता है दूसरे से, किसी आदमी को मोड़ने कहिएगा तो यहीं तक आ जाएगा। तो ये क्या है? ये इसीलिए होता है कि मसल का उसका जो स्ट्रक्चर है शुरू से बना है वो डिफर होता है। हर आदमी का मसल का अकड़ने का स्थिति, और ये आदमी को कैसे मसल ठीक होगा, जैसे आप पढ़ने बार बार, जैसे आपको अगर किसी चीज को लर्न करना हो तो आप क्या करते हैं, बार बार उसको रिपीट कराते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए महात्मा गांधी पर आप ऐसे लिखिए, ऐसे पढ़िए, याद करिए, तो क्या करते हैं, उसको एक बार याद नहीं होता तो 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार तो महात्मा गांधी का ऐसे याद कर लेते हैं। वैसे ही ये एक्सरसाइज करना, उस मसल को बार बार खींचना, बार बार स्ट्रेच करना, तो वो आदमी का मसल भी वैसे ही काम करेगा, वैसे ही लर्निंग होता है। उसी को बोलते हैं मोटर लर्निंग। आपके मसल्स भी इसी तरीके से, तो आपको लर्निंग, रीलर्निंग, एक्यूरेट लर्निंग, एक्यूरेसी लर्निंग, फाइन लर्निंग, ग्रॉस लर्निंग, ये सब कराना, तब जाकर के वो मसल एक्यूरेसी की तरफ आ जाए। सवाल था इनका कि हमें जो कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, तो इन्होंने मेरा कंसर्न ये था ना कि किसी पेरेंट्स को हमने बता दिया एक्सरसाइज, जी वो स्ट्रेचिंग ही बता दिया, चाहे पोजिशनल स्ट्रेचिंग बता दी, चाहे साइड लाइन सिटिंग बता दिया, चाहे नीलिंग बता दी, चाहे क्वाड्रूपेड पोजीशन बता दिया, तो वो क्या करता है ना कि ओवर स्ट्रेच कर देता है, मतलब अच्छा। तो वो पेरेंट्स घर पे क्या करे, वो सर मैं इसका जवाब दूं सर? हाँ, 1 मिनट में। जी। इससे
किसी में आप हाँ तो फिजियोथेरेपिस्ट है जो आपको लगे कि मैंने अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने एजुकेटेड, मैंने ऐसा भी नहीं कि 1 साल का कोर्स कोई कर लिए या 6 महीना का ट्रेनिंग करके काम कर रहा है, उनसे नहीं, कोई अच्छे एक्सपर्ट से आपको बात करके सलाह लें, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी में कितना हम स्ट्रेच करें, कितना कम करें, ये आपको एग्जैक्ट वही बता सकते हैं कंडीशन देख करके। ये हम आपको इसमें माइक ग्रेट। मैं जाना चाहूंगा चंदन के पास। जी जी सर, जेसी गुप्ता सर। जी सर बताइए सर। ऐसा है जो भी ये प्रश्न था कि कितना समय ओवर एक्सरसाइज करा देते हैं, तो एज एक्सपर्ट्स हमारे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे को कितने समय तक हमें एक्सरसाइज कराएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो टाइम कैन बी मेंटेन आइदर बाय काउंटिंग, कि आप उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक 10 बार कराइए, 5 बार कराइए, 4 बार कराइए, या एक एक्सरसाइज 1 मिनट तक कराइए, 2 मिनट तक कराइए, 3 मिनट तक कराइए। तो समय को हम मेंटेन कर सकते हैं। जब भी हम पेरेंट्स को बताते हैं तो ये पेरेंट्स को घर पे एक्सरसाइज करनी है तो ये हमको जरूर बता देना चाहिए कि टाइम को कैसे मेंटेन करना है, आइदर बाय काउंटिंग और बाय क्लॉक। थैंक यू आलोक जी। या ग्रेट ग्रेट। सो या प्लीज मैम, या प्लीज मैम। हाँ बताइए मैम, आपका क्या सवाल है? जी बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए मैम आपको अपने को, कौन बोल रही है? हेलो। यस मैम, मैं शिप्रा बोली। जी बोलिए। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी कि जो टाइप 2 डायबिटिक बच्चे होते हैं उनके लिए क्या स्पेशल टाइप की योगा पोस्चर या कितना करें जिससे वो थके भी ना और उनको रिलीफ मिले। ग्रेट। आपका क्वेश्चन है कि टाइप 2 डायबिटिक अगर किसी भी बच्चे को या किसी व्यक्ति को है तो ऑब्वियसली है कि उनको थकावट भी हो जाती है, तो उसके लिए किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए? आप हमें मैं डॉक्टर सराफ साहब आप बताएंगे क्या, या डॉक्टर सूरज सर? देखिए ऐसे को एक एक्सरसाइज है जो नया निजात हुआ है, मेरा नया पब्लिकेशन भी हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज में कौन सा एक्सरसाइज करना, उस एक्सरसाइज को बोलते हैं ब्रेन जिम एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? ब्रेन जिम एक्सरसाइज। तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं उनको बोलिए ब्रेन जिम एक्सरसाइज करके उसमें गूगल पे सर्च करें ब्रेन जिम एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज आइडियल एक्सरसाइज फॉर डायबिटीज 2 पेशेंट्स। और मेरा खुद का पब्लिकेशन है, ये मेरा आप आर्टिकल ढूंढेंगे तो नेट पर मिल जाएगा गूगल में, आप इसको ढूंढिए और प्रॉपर में करना होगा। इसके लिए 10 एक्सरसाइज है, वो 10 एक्सरसाइज विद डायग्राम पूरा मेरा गूगल पे डाला हुआ है, आप देख करके कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक यू। इसका नाम दोबारा बताएंगे प्लीज? आप दोबारा नाम बताइए सर। ब्रेन जिम एक्सरसाइज, BRAIN ब्रेन जिम एक्सरसाइज, ब्रेन जिम एक्सरसाइज। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। So I'll go into the last of the session. Yeah. किसी के पास सवाल है क्या? जी कौन बोल रहे हैं आप? हेलो जी, राम सिंह सर बात। एक क्वेश्चन मेरा। हाँ जी बताइए राम सिंह जी। सर जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, जैसे कि असेंबली टाइम में जैसे कभी कभी ये होता है फील्ड ग्राउंड में स्पेस ज्यादा नहीं होता है, तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन सा स्टैंडिंग पोजीशन का योगा या एक्सरसाइज बेस्ट रहेगा या सिटिंग? असेंबली टाइम में जब सुबह सुबह जो प्रेयर का टाइम होता है उस समय ना जी, प्रेयर टाइम में कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह सुबह, यही ना डॉक्टर सूरज? या प्रेयर टाइम पहला एक्सरसाइज था जिसको हम बताए थे, हर जॉइंट में छोटी छोटी एक्सरसाइज वाली बताए थे ये वाली, और उसके बाद ये सब एक्सरसाइज बताए थे। ये कहने का मतलब, प्रेयर का मतलब आप समझिए, प्रेयर को मैं बहुत अच्छा से डिफाइन करता हूँ आपको। जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो अंदर से माने मन से आपको पूरा शांत रहना है, आपका दिमाग जो है पूरा कंसंट्रेट कर रहा है, आपका दिमाग इधर उधर कहीं सोचना नहीं है, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो अंदर से कहता है प्रार्थना करना, अब बाहर से पूरा एक्टिव करना। बाहर से शरीर का आपका काम जो है देखने में पूरा एक्टिव रहना है, ऊपर नीचे साइड ऊपर नीचे। तो कहने का मतलब बाहर से पुरुषार्थ और अंदर से प्रार्थना।
मन पूरा शांत होना चाहिए और देखने में पूरा एक्टिवनेस दिखना चाहिए बॉडी। ये वाले एक्सरसाइज को बोलते हैं सुबह सुबह करती है। और साथ में हम जो हैंड से एक्सरसाइज बताया था, गर्दन का, हिप का, सब एक्सरसाइज करें। कहने का मतलब कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करें। गुड। सो सुबह सुबह हमें जी सर, जी जैसे गुप्ता सर, मैं राम सिंह पालवी से कहना चाहता गुप्ता सर, मैं आपका फाइनल रिमार्क्स भी चाहिए और आप सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो प्रेयर टाइम की बातें कर रहे हैं कि प्रेयर के बाद में बच्चों को क्लासरूम में जाना चाहिए। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, एक लाइट एक्सरसाइजेस की बात कर रहे थे, एक हैवी एक्सरसाइजेस की बात कर रहे थे। जी। तो प्रेयर के तुरंत बाद अगर हम उनको हैवी एक्सरसाइजेस करा देंगे, उनकी मसल्स जो है वो थक जाएंगे, क्लास में जाकर के इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए प्रेयर के टाइम में जहां तक हो सके हमको हल्की हल्की एक्सरसाइजेज करानी चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर सूरज ने बताया कि भाई आप हाथ आगे करके मुट्ठी खुलवा लीजिए, कंधों को आगे नीचे पीछे करवा लीजिए। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज अगर हम करा लेंगे तो बच्चों का अटेंशन भी बढ़ेगा और वो थकेंगे भी नहीं। ग्रेट। आलोक जी मैं आपसे सर मैं फाइनल रिमार्क्स भी जानना चाहूंगा आज के प्रोग्राम का। सो यू आर द प्रिजाइडिंग आवर सेशन, सो प्लीज सर। नहीं, ये एक तो बहुत ही अच्छी चीज जो है कि हमको दिन में एक हफ्ते में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कितने मिनट तक करनी चाहिए। पहली बात तो ये। एंड डॉक्टर सूरज ने बहुत ही अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया और लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देख करके पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स हो या टीचर्स हो अपने बच्चों के साथ में घर में काम कर सकते हैं। तो इट्स ए वेरी वेरी यूजफुल डिमॉन्स्ट्रेशन। एंड सिमिलरली डॉक्टर सौराब ने जो बताया वो भी बहुत बढ़िया चीज थी कि भाई हमको खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या खाना खाने के कितनी देर बाद करनी चाहिए, कितना करना चाहिए। और जो एक चीज बताई ना, डाइजेशन, इनटेक, आउटपुट, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। लोगों को ये पता नहीं होता है कि अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को खिलाते जाते हैं, बहुत कमजोर है, खिलाएंगे तो इसको ताकत आ जाएगी, मगर वो खिलाते हैं और वो कितना एब्जॉर्ब कर पाता है उसमें से, तो वो हमको ध्यान रखना चाहिए। तो डाइट का बहुत जबरदस्त ख्याल रखना चाहिए। व्हेन वी आर वर्किंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, हमने अक्सर देखा है कि वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं। तो डाइट का हमको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और एक्सरसाइज नियमित रूप से हमको कराते रहना चाहिए एज बीइंग एडवाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स। यस, ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक यू। सो it was, I think it is deemed to great honor to host this 11th Dr. episode. Alok sir, sorry you, a very good evening each and everyone, to all the wonderful experts, and it was really very informative session. Thanks a lot. Ma'am, could you please identify yourself? Yeah, I am Harpreet Kaur Sodhi, and I have done my masters from IGNOU. So yeah, great. Consistently I am getting mails from your side, and this is my very first session that I have attended, and it was really informative. So I have two questions for myself. Like, I'm 27 years old, and first of all, I have gum bleeding problem. Like abhi recently start hua hai कि मेरे gum से ना bleed होता है, तो उसके लिए आप कुछ solution बता देते हैं। I have been to doctors as well, dentist के पास मैं स्टीफन गई थी, बट उन्होंने मुझे बोला था कि आप क्लीनिंग कराओ ईयरली, बट क्लीनिंग के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मेरे टीथ हैं वो और ज्यादा लूजन हो सकते हैं और वो उसमें और प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई एम लुकिंग फॉर सम नेचुरल रेमेडीज, लाइक जैसे मैं योगा वगैरह भी करती हूँ, मैं मुरारजी देसाई से अभी योगा सीख रही हूँ, तो मेरा डिप्लोमा वहां से चल रहा है और मैं कंसिस्टेंटली योगा भी करती हूँ रेगुलरली। मेरी डाइट भी नेचुरल है, मैं अच्छी हेल्दी डाइट लेती हूँ, बट थोड़ा सा ये गम प्रॉब्लम से लेकर मैं थोड़ा सा लाइक समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। नेचुरल थिंग को कुछ बता सकते हैं कि नेचुरल रेमेडीज पे मैं रिलाई करूं। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं कंसिस्टेंट योगा करती हूँ रेगुलरली, तो वेट जो है नॉर्मली वो 47 kg रहता है, बट अभी मैं योगा डेली करती हूँ तो मेरा वेट जो है वो डाउन हो जाता है, मतलब पुट ऑन की जगह वो लूज होने लगता है, लाइक अभी 40 kg। के लिए आप थोड़ा सा कुछ अगर सजेस्ट कर सकते हैं तो। Okay, so we have the two questions and this is the last question.
I'll go to our expert. There is a sir, do you have any solution or do you have any kind of physical exercise for controlling the gum bleeding, हमारे दांतों से मसूड़ों से खून जाने का उसका? और दूसरा है कि हमारा जो है एक्सरसाइज करने से वजन भी थोड़ा ज्यादा कम हो जाता है, तो क्या हम उसके लिए क्या करें? डॉक्टर सूरज या डॉक्टर सौरभ या डॉक्टर चंदन, three people are here as expert. Do you have any answer of this? देखिए, मैं एक चीज बता सकता हूँ। जी जी, इनको बोलिए कि ये ना विटामिन सी का रेगुलर सेवन करें, आंवला और नींबू, और जिस भी फ्रूट में विटामिन सी मिलता हो वो विटामिन सी लेना है। बाकी ऐसे कोई एक्सरसाइज इसमें पर्टिकुलर इसीलिए नहीं है क्योंकि ऐसा एक्सरसाइज जब मान ले जिसको ड्रूलिंग होता है ना, जैसे मान लिया लार टपकता है, उसके लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन जो ब्लड आ रहा है ये समथिंग रिलेटेड टू द पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो इसमें एक हमारी तरफ से सजेशन ये है कि इनको विटामिन सी का बोलिए लेने के लिए रेगुलर। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं विटामिन सी खाती हूँ तो मेरे ना दांत खट्टे हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं नॉर्मल कुछ नहीं खा पाती, वो दांतों में दर्द होने लगती है। तो दांत खट्टे हो जाते हैं तो sorry sir, can I say something to please. Missy, sorry Miss, sorry, this is Chandan. I'm not dentist, just with my experience and मैं लोगों से सुना हूँ and I agree with Dr. Surya about it कि vitamin C is good, but vitamin C के टैबलेट हैं जिससे दांत खट्टी होंगे, आप उसको ले सकती हैं। विटामिन C के वो टैबलेट डिसॉल्व सॉल्यूशन वाले आते हैं, उसको पानी में डाल के उसको जस्ट rather having lemons or oranges, तो वो फॉर्म भी ले सकती हैं। अगर आपका वेट कम हो जाता है तो ज्यादा खाना ही है। It's good, no? You have opportunity to eat more and more food. That's the only thing I would advise you. सर मैं इतना खाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, मैं बहुत मतलब फूडी तो बहुत हूँ। मैं जस्ट सिर्फ योगा के टाइम पे नहीं खाती, योगा करने से 1 घंटा पहले नहीं खाती, योगा करने के 1 घंटे के बाद तक नहीं खाती। बाकी पूरा दिन मैं बहुत हेल्दी डाइट लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह, प्रोटीन्स, अच्छी डाइट लेती हूँ मैं। But I think weight जो है ना, that is depend on your height as well and your age as well, right? So जो BMI should be good. अगर ये ये नहीं होता आपका 47 है या 57 है, आपका जो BMI अगर ठीक है तो there should not be a problem. आपको worry नहीं होना चाहिए। मेरा BMI you should just live a normal healthy life. मैं अंडर वेट हूँ, लाइक मेरी हाइट जो है वो 5'5" है, 5'5" इंच, तो मेरा वेट उसके अकॉर्डिंग 50 होना चाहिए अकॉर्डिंगली। बट अभी मेरा करंट जो 47 था दैट वाज परफेक्ट, मतलब ठीक था। अभी मेरा 40 kg हो गया है और मैं योगा में मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे आसन कर लेती हूँ और मैं प्रॉपर अपने आप को डिवोट करती हूँ कि जिससे मैं योगा करती हूँ। Sorry ma'am, I think इनका फैक्टर है, I think आलोक सर को तुरंत बंद भी कर। So मैं बस यही बोलूंगा मैम, I think you should consult doctor because there must be something pathological. ठीक है, so आप उनसे कंसल्ट करें and then I think that will be better. अच्छा रहेगा, ठीक है? Okay, thank you. One question more. हरिशंकर यादव, स्पीच थेरेपिस्ट, लखनऊ, आशा स्कूल कैंट। जी मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, तो बच्चों को स्पीच कराता हूँ। तो हरिशंकर जी बताइए सर। सर मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, जब बच्चों की थेरेपी कराता हूँ तो काफी बच्चों में सर ड्रूलिंग की समस्या होती है, तो उसको अभी कंट्रोल करने के लिए सर ने एक उपाय बताने के लिए कहा था, तो सर जानकारी दे देंगे तो बहुत अच्छा। डॉक्टर सूरज, आपका लास्ट टिप्स फॉर हाउ टू स्टॉप ड्रूलिंग थ्रू द फिजियोथेरेपी। डॉक्टर सूरज, स्पीच थेरेपी। हाँ, ये तो हमारे पास जो थंब है, थंब का हम लोग सिंपली जो एरिया है, जैसे मान लिया अगर मान लिया राइट साइड में लेफ्ट साइड में है, थंब से हम लोग मसल को नीडिंग करते हैं और हमको पता हो जाता है कि कौन सी यहाँ पे मसल्स है और भी कुल और इस मसल है, पेटर है ना, लेटिज्मा है, जो मसल्स हैं उसको हम प्रॉपरली हाइजीन करते हैं, हेल्दी करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडिंग मसाज, नंबर 1। नंबर 2 में क्या करते हैं कि उस मसल को हम एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेशन देते हैं, और एक्टिवेशन देने के लिए हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर, विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, या जिससे आप जो क्या कहते हैं स्वेटर बुनने के लिए जो कांटा बनता है उससे भी हम लोग अब मोड़ करके बना देते हैं, उससे भी स्टिचिंग करते हैं।
उसके बाद सिंपल हम हवा से ब्लोइंग करने के लिए एक्सरसाइज सिखाते हैं, माउथ ब्लोइंग। उसके बाद जो हमारे पास और भी बॉल होते हैं उसको फूंक करके हवा देने के लिए सीखते हैं, और उसके बाद मुंह को फुला करके रोकने के लिए सिखाते हैं। हेलो सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा। सो मैं हम लोग तो देख रहे हैं मैडम वीडियो। सो I'll say this is a very good session and we have extendedly Sir, I would like to add beyond the one thing. town. Sorry to Hari Shankar ji. Yeah, please. Okay, please, that's please, fine. please, Sorry. please, मैं हरी please, शंकर please, बोल रहा हूँ सर। प्लीज सुचंदन। हाँ, हरिशंकर जी, मैं आपको सिर्फ दो टिप्स और दूंगा। तो एक तो हनी अगर बच्चे में हनी है तो गम में आप उसको मसाज कर सकते हैं हनी से, दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ड्रूलिंग। हनी से जो शहद से आप गम में मसाज कर सकते हैं। एंड आल्सो आइस क्यूब्स जो होते हैं उसको भी मुंह के अंदर में डालेंगे तो और उसको मसाज करवाएंगे, उससे भी आपको बहुत इफेक्ट होता है ड्रूलिंग में। अपार्ट फ्रॉम सर ने बताया ब्लोइंग एक्सरसाइज और थंब एक्सरसाइज अराउंड द जी। तो सर ये जो मसाज करना है हमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रश से करना है या फिंगर से करना है सर? शहद का वाइब्रेटिंग बस आता है। हाँ, वाइब्रेटिंग बस आता है। फिंगर से कीजिए, थंब से लेकर, थंब से ही आप अपना शहद लगाकर थंब से कीजिए। आइस क्यूब्स लेके यहाँ पर इस तरफ लोअर चीक जो है ना वहाँ पे आप मसाज कीजिए, वो हेल्प करता है। ठीक है? Great. So great. So thank you. Thank you, sir. Thank it is you. an honor, and this is our 11th episode. This was 11th episode, and thank you all who have helped us in making episode such a grand success. We had the great audience today, and we had the huge number of audience today. First of all, I would like to propose heartily thanks to our special expert, Dr. Suraj and Saurabh, for gracing this today's Mashwara. So, Dr. Suraj and Dr. Saurabh, sir, so thank you very much for informative address. Thank you. Okay. And okay, welcome. Thank we you. really Welcome, give big sir. round of applause for Gauri Shankar and Dr. KB Ranjit Singh Chaudhary giving the professional expert as a demonstration today in this episode. So thank you both experts. I would like to express my gratitude and thanks The next to, session information. Wait. The next session. I'll give the information. I'll give that. I would like to thanks all the very gratitude to our chairperson of this session, Mr. J.C. Gupta sir. And I have seen we had the chairperson of our advisory board, Mr. M.M. Vidya. मशवरा मशवरा एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वेबिनार जहां लॉकडाउन में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों पर हमारे मनोचिकित्सा या उससे जुड़े विशेषज्ञ द्वारा लाइव परामर्श एवं सवालों का जवाब दिया जाता है। आप भी जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी कोई सहायता के लिए 9911107772 पर हमें संपर्क करें।